السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد کی تازہ ترین صورتحال سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی خود مختاری کا معاملہ ہے، اور انتخابات کے حوالے سے مبصرین کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ پاکستان کے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں عالمی سطح پر سامنے آنے والے رد عمل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کی ملر نے بدھ کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں انتخابی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں بشمول ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے بھی پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی حکام اور الیکشن کمیشن یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں انتخابی عمل شفاف انداز میں منعقد ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف علی خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے انتخابات پر نظر رکھے اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر آواز اٹھائے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے بیرسٹر سیف علی خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ کے حوالے سے یہ خاص پیغام دیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گی تو پھر سیاست سے جواب دیں گے۔ عام انتخابات میں دھاندلی کے سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ پی ٹی آئی والوں کے جسموں سے نہیں بلکہ ذہنوں سے مسئلہ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انتخابی نتائج سے نالاں مولانا فضل الرحمان نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران کہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے سابقہ اتحادیوں سے رابطوں کے باوجود حکومت میں شامل ہونے کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی نواز شریف کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی حزب اختلاف میں بیٹھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ہفتے کو پرامن احتجاج کرے گی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ وفاق اور خیبر پختونخوا میں حکومت سازی پر بات ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات پر وائٹ پیپر لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انتخابی نتیجے کے فارم 45 کے تمام نتائج فارم 47 میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور جماعت اسلامی نے تمام تفصیلات اکٹھی کر لی ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے غیر ملکیوں کے جبری انخلاء کے فیصلے کے خلاف افغانستان سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں کی ایک اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو ان افراد کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے گلوکاروں اور موسیقاروں کی جانب سے بھی اسی قسم کی ایک درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے لیے شروع کی جانے والی الیکٹرل بانڈز اسکیم کو غیر آئینی اور من مانا قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے سربراہی والے بینچ نے
स्कीम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसके तहत अब तक दिए गए तमाम चंदे की तफसील 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फराहम करने का हुक्म दिया। उसने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो 13 मार्च तक ये तफसील अपनी वेबसाइट पर शायर करे। हुकूमत ने सन 2018 में ये स्कीम लॉन्च की थी। इसके खिलाफ अर्जी दाखिल करने वालों का कहना था कि इससे फंडिंग में शफाफियत मुतासिर होती है। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन हुकूमत या बीजेपी की जानिब से इस पर ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उसकी ख्वाहिश है कि तालिबान के नुमाइंदे अफगानिस्तान पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, जो अगले हफ्ते कतर में मुनक़िद होगी। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने बुध को कहा कि तालिबान 18 फरवरी को होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे, बशर्ते कि वो अफगानिस्तान के सरकारी नुमाइंदों के तौर पर मदऊ किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस 2 रोज़ा इजलास की मेज़बानी कर रहे हैं, जिसमें रुकन ममालिक और इलाकाई तंजीमों के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान स्टेफान दुजारिक ने कहा कि इस मुलाकात का मकसद तालिबान के साथ बैनुल अक़वामी राब्ते के तरीक़े-ए-कार पर बातचीत करना है। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट और अफगान ख़वातीन, लड़कियों और इंसानी हुकूक के लिए खुसूसी एलची रैना अमीरी इतवार को दोहा में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइली खुसूसी दस्ते जनूबी गजा के शहर खान यूनुस में वाक़ई नासिर हस्पताल के अंदर मौजूद हैं। फौज ने एक बयान में कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस इस बात की निशानदेही करती है कि यरगमालियों की लाशें यहां मौजूद हो सकती हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह ने जुमेरात को खबरदार किया कि अगर इसराइल ने सरहदी शहर के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो रफा में जमा होने वाले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद मिस्र मुंतकिल हो सकती है। जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि यह ख्याल कि गजा के लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सकते हैं एक फरेब है। हिजबुल्लाह के सीनियर अहलकार और रुकन पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने जुमेरात को कहा है कि इसराइल को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसराइल की जानिब से गुज़श्ता रोज जनूबी लबनान पर 2 हमलों में 10 शहरी और हिजबुल्लाह के 3 अरकान हलाक हो गए। मुसल्लह ग्रुप के रद्द अमल के बारे में पूछे जाने पर फजलुल्लाह ने रॉयटर्स को बताया कि इसराइल इन जराइम की कीमत अदा करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान से जदीद रिवायती हथियार और दीगर मोहलिक इमदाद कब्जे में ले ली है, जो 28 जनवरी को बहरा अरब में एक बहरी जहाज पर यमन के हौसियों के ज़ेर कब्जा इलाके के लिए रवाना की जा रही थी। यमन में हौसी बागियों ने नवंबर के वस्त से बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाजरानी के खिलाफ 12 ड्रोन्स और मिसाइल दागे हैं। उनका कहना है कि वो गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। सदर जो बाइडन ने बुध के रोज एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अमेरिका में मौजूद फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनकी बेदखली को 18 माह के लिए रोक दिया गया है। बाइडन इंतजामिया के एक ओहदेदार ने कहा कि इस इक़दाम से 6000 के करीब फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को आर्जी तौर पर रोकने की इजाजत मिल गई है। अमेरिकन अरब एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब्दुल अय्यूब ने एक बयान में कहा कि अमेरिका में मौजूद फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि गजा में सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है और हम इस हुक्मनामे का खैर मकदम करते हैं और इस पर अमल दरामद पर खुश हैं। चीन और रूस ने हालिया हफ्तों में करीबी ताउन को बरकरार रखने के अज़्म का इज़हार किया है और रूस में चीन के सफ़ीर ज़ांग हानहुई ने
रूसी सरकारी मीडिया को बताया कि पुतिन इस साल चीन का दौरा करेंगे और तवक्को है कि दोनों रहनुमा इस साल के दौरान और भी कई मुलाकातें करेंगे। 8 फरवरी को एक कॉल के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और पुतिन ने चीन और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन और गहरे ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया था और अमरीका की जानिब से दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत को तनकीद का निशाना बनाया था। यूक्रेन ने कहा है कि जुमेरात को रूसी मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए और मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। मगरबी यूक्रेन में लियोवेव के इलाकाई गवर्नर मैक्सिम कोजेत्स्की ने कहा कि वहां 3 अफराद जख्मी हुए हैं क्योंकि मिसाइलों से एक बुनियादी ढांचे की इमारत और कई घरों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया का कहना है कि रूस ने कुल 26 मिसाइल दागे हैं, जिनमें से निस्फ को यूक्रेन के फजाई दिफा ने तबाह कर दिया है। बेलगोराड के गवर्नर के मुताबिक बेलगोराड पर जुमेरात को मिसाइल हमले में एक बच्चे समेत 5 अफराद हलाक और 5 बच्चों समेत 18 जख्मी हो गए हैं। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी RIA नोवस्ती ने कहा कि बेलगोराड में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। वजारत दिफा के ज़ेरे कंट्रोल एक टेलीविजन चैनल ने बताया कि मैग्नेट शॉपिंग सेंटर के करीब 6 अफराद हलाक हो गए हैं। कोरियाई खबर रसां इदारे KCNA ने जुमेरात को कहा कि शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने बुध के रोज सतह से समंदर में मार करने वाले नए मिसाइल तजर्बे की निगरानी की और एक बड़ी असलहा साज फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने हथियारों की पैदावार में इजाफे पर जोर दिया। व्हाइट हाउस ने नई खुफिया मालूमात का हवाला देते हुए गुज़श्ता माह कहा था कि रूस ने हाल ही में शिमाली कोरिया से हासिल किए गए कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल किया था। ह्यूस्टन में कायम निजी एरोस्पेस कंपनी के जरिए तैयार करदा मून लैंडर जुमेरात के अवाइल में फ्लोरिडा से चांद के सफर पर रवाना हुआ। निस्फ सदी से ज्यादा अरसे में यह चांद पर जाने वाला पहला अमरीकी मिशन है और जिसे निजी मिल्कियत वाले खलाई जहाज के जरिए लॉन्च किया गया है। मंसूबे के मुताबिक ये लैंडर एक हफ्ता तवील परवास के बाद 22 फरवरी को चांद के कुतुब जुनूबी के करीब लैंडिंग करेगा और अगर कामयाबी हो गई तो ये परवाज 1972 में अपोलो के चांद मिशन के बाद से किसी अमरीकी खलाई जहाज के जरिए चांद की सतह पर पहली कंट्रोल शुदा लैंडिंग होगी और किसी निजी कंपनी की तरफ से भी ये पहली परवाज होगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।